थियरी, जब हम मॉडर्न थियरी की बात करते हैं, आई टोल्ड यू कि मॉडर्न थियरी इट बिगिंस विद whom, इट बिगिंस विद टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, एफ.आर. लिविस. इफ यू टेक द नेम ऑफ दिस थियरिस्ट, यू विल कम टू नो कि मॉडर्न थियरीज में कितना सारा चीजें हुआ, क्या चेंजेस आए. And yesterday I told you कि when you talk about especially T.S. Eliot, you will come to know कि he was born in 1888 and died in 1965. तो born American poet, अगर मैं कहूँ कि born American poet, playwright, critic, classicist, whatever the word you would like to use for that man. तो जो टी.एस. एलियट है, यू विल कम टू नो कि टी.एस. एलियट अ पोएट एज वेल एज क्रिटिक. And even you will come to know ki when you talk about ki T.S. Eliot as poet, T.S. Eliot as means a poet as well as a critic. So it's because he got the first hand experience of what एक तरह से poetry. Then he talked about ki how you should come to know about poetry, or how you should try to understand poetry. When you talk about this man, remember that he was born in modern era. He came to know the basic characteristics of modern age का जो basic characteristics है, especially poetry का. He came to know about those points, and even he himself said कि the age is complex, therefore poetry should be complex. Indirectly he said, you will come to know ये सब चीजें रहेंगी. Yesterday I told you कि when you are going to understand this man as a poet, what the things you have to means just keep in your mind. You have to keep in your mind कि T.S. Eliot as a poet, you remember that कि उनमें illusion, you remember that what myth, you remember what, you remember irony, you remember satire, you remember what, you remember interior monologue, and you find what, you find the contemporary situation. And when you talk about the contemporary situation, you come to know about gambling, you come to know about clash between materialism and spiritualism, degradation of moral values. If you talk about these things, you find these points. So what I want to say कि whether you go with this man, you will come to know कि ये सारा का सारा पॉइंट्स उनकी कविता में है. कौन कौन सी पॉइंट, फिर से मैं आई वुड लाइक टू रिपीट कि एक तो आपका जो है मिथ है, सिंबल है, इमेज है, फ्री वर्स की बात अगर आप करते हैं तो वो भी चीजें आप पाते हैं. और अगर ये सब तो मैं डिवाइसेस बता रहा हूँ, सटायर भी आपको देखने को मिलेगा, आयरनी भी आपको देखने को मिलेगी. लेकिन कंटेंट के पर्सपेक्टिव, इफ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कंटेंट, you will come to know what other points you find. You find that there was lust, passion, gambling, infatuation, all these things you come to know. Except it, you find what, you find city culture जहाँ पे रेस्तरां और पब, होटल, और डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज. मॉरल वैल्यूज का डिग्रेडेशन you see. You find what, you find how the people were ultimately interested to spend their time, to spend their life where in hotel and restaurant, not in church. So these are the important points which you come to know, yeah, which you find. So what I want to say ki taking T.S. Eliot as a poet, taking T.S. Eliot as a critic, it's the highly significant that we have to go what, we have to go with the basic characteristics of modern age and modern poetry. जो मॉडर्न एज रहा है, जो मॉडर्न पोइट्री रही है, उससे रिलेटेड चीजों को हमें समझना चाहिए. when you talk about modern age, तो मॉडर्न एज में देर आर सर्टेन पॉइंट. सबसे पहला कि इट वाज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वार्स, या टू वर्ल्ड वार्स का एज था. जो टू वर्ल्ड वार्स था 1914 टू 1918, 1914 से 1918, 1939 से 1945. Again, I would like to tell you कि when you are going to understand T.S. Eliot as a poet in modern era, it is very important that we have to go with the basic characteristics of modern poetry or modern age. जो मॉडर्न एज है उसमें सर्टेन पॉइंट्स हैं कि इट वाज एन एज ऑफ टू वर्ल्ड वार का था. एंड दिस वर्ल्ड वार ब्रॉट व्हाट इट दिस वर्ल्ड वार ब्रॉट हैवॉक, दिस ब्रॉट व्हाट, दिस वर्ल्ड brought ultimately trauma, pain, agony. And you also find what, you also find post world war experiences कि after first world war how the life was, and after second world war how the life was. कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले लाइफ कैसे थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की जिंदगी कैसे थी, और उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ फ्रॉम 1939 टू 1945, उस समय का लाइफ कैसे था. So you go with these points, you find these points, and you will come to know undoubtedly the life was complex, काफी ज्यादा लाइफ कॉम्प्लेक्स थी. So when you find कि complex life has been presented, या complex life has been just depicted by this man,
देन यू विल कम टू नो कि इसका डिपिक्शन कहाँ है, इसका डिपिक्शन कहाँ पे है। यू विल कम टू नो कि इसका डिपिक्शन एक पार्टिकुलर जगह पे मिलेगा। एंड यू विल कम टू नो कि उसका डिपिक्शन कहाँ पे है। अगर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि यू फाइंड कि जो लाइफ कॉम्प्लेक्स रही है, जो लाइफ उस तरह का रहा है, उसका डिपिक्शन कहाँ पे आपको मिलता है, वेयर डू यू फाइंड? कैन यू गिव द एनी एग्जांपल विच यू हैव गॉन, जो जो आपने देखा हो, जो आपने सुना हो? Yeah, the wasteland and other, especially the wasteland. Yeah. नहीं, especially in the light of T.S. Eliot. Yeah, Love Song of the Alfred Prufrock. Love Song of the Alfred. Portrait of a Lady, Gerontion, Journey to Magi, whatever the poem you take. What I want to say ki when you talk about this poet, especially modern age and especially modernism, modernity, T.S. Eliot, then there are certain points always जो हमेशा हमेशा माइंड में रखना चाहिए। हमें क्या माइंड में रखना चाहिए कि मॉडर्न एज टू वर्ल्ड वार का एज था, तो ये जो टू वर्ल्ड वार है, इस टू वर्ल्ड वार का रिफ्लेक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, उनके किस क्रिएशन में? उनका जितना भी क्रिएशन है, मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो, चाहे वह बर्च नाटन रहा हो, चाहे आपका जो है द वेस्टलैंड, स्पेशली द वेस्टलैंड रहा हो, और जो आपका लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, वहां पर भी इसकी झलक आपको कुछ ना कुछ मिलेगी। डिवास्टेशन, frustration, alienation, infatuation, all these things you find. So when you talk about modern poetry, when you talk about modern age, when you talk about T.S. Eliot, it means that there are certain points, there are certain things which every person must remember, which every person must memorize, which every person must recall, because that thing is already in your memory. I'm not telling anything extra, but I'm just telling you कि you find these things and you can just go, you can just point out। आप उन चीजों को पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये चीजें वहां पे रही है। एंड व्हाट डू यू फाइंड देयर? यू फाइंड दैट कि टीएस एलियट का जब भी बात होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडर्न एज में जितना भी ये रहा था, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली टीएस एलियट और डब्ल्यू बी येट्स ने सिंबल का यूज किया है। तो सिंबल जो है किसकी पोइट्री में? टीएस एलियट में। इन लोगों ने इमेज का यूज किया है, इमेज भी इनकी पोइट्री में आपको नजर आएगा, टीएस एलियट की पोइट्री में। इन्होंने जो है क्या किया हुआ है कि इन्होंने सटायर का यूज किया, आयरनी का यूज किया। यू विल फाइंड दीज टू थिंग्स आल्सो। फ्री वर्स मॉडर्न एज का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक पोइट्री का रहा है, जिसको हम वर्ड्स लिब्रा ओपन फॉर्म कहते हैं, जो वाल्ट विटमैन के समय से शुरू हुआ, स्पेशली इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रॉस इन 1855 में, 1855 ईस्वी में उनके वर्क में। व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स यू विल कम टू नो कि ये सारी की चीजें फ्री वर्ड्स भी रहा है। इसके अलावा डब्ल्यू एच हॉर्डन ने मॉडर्न एज को क्या कहा था? डब्ल्यू एच हॉर्डन ने मॉडर्न एज को ये कहा था कि इट वाज एन एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी। तो आई जस्ट वांट टू यू नो कि डू यू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी इन मॉडर्न एज आर नॉट? क्या मॉडर्न एज में आपको अनरेस्ट और एंजाइटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, डू यू फाइंड इट इन द वर्क्स ऑफ टीएस एलियट और नॉट? क्या ये आपको टीएस एलियट के वर्क में नजर आता है, अनरेस्ट और एंजाइटी? इफ यू फाइंड इट, हाउ कैन यू प्रूव? इन विच पोएम? द वेस्टलैंड, या स्पेस स्पेशली लव सॉन्ग ऑफ द अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। जो अनरेस्ट और एंजाइटी है, जो ये कहा गया कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, अनडाउटली इट वाज सेड लेटर ऑन, बट यू विल कम टू नो कि द स्पिरिट ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी यू फाइंड इन द पोइट्री ऑफ दिस वन, स्पेशली इन वेयर स्पेशली लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। जो प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन जो कलेक्शन है, उसका जो पोयम है लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रे प्रूफ्रॉक विच केम इन 1917, यू विल कम टू नो वहां पे क्या दिखाया गया। वहां पे एक ऐसा कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर क्या करना चाहता है, जो कैरेक्टर प्रपोज करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं प्रपोज करने का। ऐसा लगता है कि वो अनरेस्ट और एंजाइटी के कंडीशन में है, वहां पे एक डिसऑर्डर है, वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वहां डिले इन एक्शन है। यू फाइंड कि एक तो आपने हैमलेट पाया था, शेक्सपियर का हैमलेट, लेकिन मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट दिस मैन इज आल्सो हैमलेट, बिकॉज हियर इज आल्सो डिले इन एक्शन। और एक जो प्रिंस था, वहां पे भी डिले इन एक्शन था।
यहाँ पे यह जो है मिडिल क्लास का कैरेक्टर हो सकता है, लोअर मिडिल क्लास का कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन वहां पे प्रिंस था, एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स यू फाइंड. So what I want to tell you, what I want to say, when you go with these, especially these thinking, there is unrest and anxiety, जो मॉडर्न एज की कंडीशन है, ये बात किसने कही है? W.H. Auden ने कही हुई है. इसके अलावा हम क्या पाते हैं? वी आल्सो फाइंड दीज थिंग्स. We find free words, we find symbol, we find image, we find irony, we find satire, we find references, we find allusions, we find indirect way of saying. Because when you say कि modern poetry is, for what modern poetry is highly complex, then complexity you find in modern poetry in which way? अगर आप ये विश्वास करते हैं या कहते हैं कि मॉडर्न पोइट्री बहुत कॉम्प्लेक्स रही है, तो मॉडर्न पोइट्री में कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैसे नजर आती है? मॉडर्न पोइट्री में कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है अगर आप ये कहते हैं कि मॉडर्न पोइट्री में जो है अर्बन डिक्शन का यूज किया गया है. then how do you find urban diction? Because if there is the use of the urban diction, it means that the poem or poetry is highly complex. So complexity in poetry is lies because there is what, there is the indirect way of expression. What type of expression? इनडायरेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन. जस्ट आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट? कोई भी एक्सप्रेशन इनडायरेक्ट कैसे होता है? कोई कभी कैसे पोइट्री कॉम्प्लेक्स हो जाती है? क्यों नहीं ये बात कहा गया कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी? क्यों ये कहा गया कि विक्टोरियन एज वाज द एज ऑफ डाउट, डिस्प्यूट एंड डिस्ट्रैक्शन? क्यों ये कहा गया कि जो मॉडर्न एज है इट वाज द एज ऑफ द टू वर्ल्ड वार्स? ये क्यों नहीं रोमांटिक एज के साथ जोड़ा गया? क्यों जो मेंटल डिसऑर्डर था, जो साइकोलॉजिकल डिजीज है, जो ट्राउमा है, जो पेन है, जो हैवॉक है, जो आपका जो है एक तरह से डिवास्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, जो मैकेनिकल लाइफ है, एंड स्पेशली यू फाइंड की अर्बेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन, and you will come to know industrialization. Undoubtedly, it started with what it started in Victorian era, but you find कि these things reached अपनी ऊंचाई पर, एक पीक पर पहुंचता है मॉडर्न एज में. क्या जो मैकेनिकलिटी है, या जो एक लाइफ रही है, जो हमारा मैकेनिकल लाइफ रहा है, जो हमारा अर्बन लाइफ रहा है, हाउ डू यू सी, हाउ डू यू फाइंड दीज थिंग्स इन मॉडर्न एरा? आप इसको मॉडर्न एरा में कैसे पाते हैं? तो मेरा जो एक क्वेश्चन है कि जब आप टी एस एलियट बात कर रहे हैं, तो जनरली हमें थोड़ा सा उनका कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि सारी चीजें फैक्ट से नहीं, फैक्ट आप अपने आप से भी कर सकते हैं. फैक्ट क्या कर सकते हैं कि इलियट वाज बोर्न इन 1888 सेंट लुइस मिसोरी. ही डाइड इन 1965. उनका पोयम द वेस्टलैंड है वो 1922 में है. बट आपको इससे इलियट नहीं समझ में आएगा. यू मस्ट नो कि व्हाट इलियट वाज, व्हाई इलियट इज फेमस एज अ पोएट, व्हाट न्यू थिंग्स यू फाइंड इन द पोइट्री ऑफ टी एस एलियट, what trends and movement, what changes do you find in modern era, and how do you find the presence of these changes in especially in the poetry of T.S. Eliot? आपको हमें ये जानना जरूरी है कि ये चेंजेस आप मॉडर्न इरा में कैसे पाते हैं और ये चेंजेस वहां पे कैसे उनमें नजर आता है. तो जो भी मेरा डिस्कशन आपसे होगा वह डिस्कशन क्रिटिकली होगा. आई वुड लाइक टू scrutinize, I would like to assess, I would like to evaluate, because being a student of humanities, when you talk about that criticism and critic, it is our moral duty. Whatever has been written, we, whatever knowledge we have to exchange our views, we have to share our ideas. तो जो कुछ भी है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जान रहा हूँ, लेकिन हम लोग उसको पॉलिश और रिफाइन कर रहे हैं. तो आई वॉज टेलिंग यू कि अगर आप ये बात करते हैं कि मॉडर्न एज वॉज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, it was an age of mechanization, it was an age of urbanization, it was an age of industrialization, it was an age of what, it was an age where we find two world war, and it brought what, it brought massive havoc, it brought what, destruction, devastation. It ultimately forced the people to think, are you the rational creature of God or not? ये सारी की सारी चीजें होती हैं. तो मेरा आपसे है कि जब आप जो है टी एस एलियट का लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक पाते हैं या उसको पढ़ते हैं, डिड ही टॉक अबाउट विलेज एरिया, डिड ही टॉक अबाउट विलेज कल्चर, डिड ही टॉक अबाउट open sky, did he talk about open field, did he talk about chirping of the bird, twittering of the bird, yeah, blowing of the air, gurgling sound of the river, climbing of the moon, rising of the sun?
Do you find these things? It's a very general question ki when you find this particular poem, yeah, where you go with T.S. Eliot, do you find these things in Love Song of Alfred Prufrock, in Giranson, Portrait of a Lady, Journey to Magi, Bhanchnatan, Dry Salvages, and so many poetry का जितना भी हिस्सा जो आपने पढ़ा है, क्या टी.एस. एलियट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको डू यू फाइंड विक्टोरियन स्पिरिट, डू यू फाइंड आर्नोल्ड, डू यू फाइंड वर्ड्सवर्थियन स्पिरिट ऑफ पोइट्री, वर्ड्सवर्थियन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोयम, या व्हाट टाइप ऑफ थिंग यू फाइंड? जितना मैंने पूछा, क्या आपको इसका प्रेजेंस नजर आता है, क्या आप ये चीजें पाते हैं वहां पर? Now we have Amit ji also. It doesn't matter that only one person should give answer. Anyone can. You आप में से कोई भी बता सकता है कि my general question is that कि why do you not find these things? Yeah, do you find these things or not? Does he talk about open sky? Does he talk about he talks about only urban life, and when he talks about urban life, what was the reason? You will come to know कि इनको ये कहा जाता है कि he revived modern poetry, he revived modern poetry. The credit goes to whom? The credit goes to T.S. Eliot, to revived modern poetry. I want to know कि if he revived modern poetry, what do you mean by revival? क्या रिवाइवल ये होता है कि वर्ड्सवर्थ के तरीके को जमीन पर उतार देना? क्या रिवाइवल ये होता है कि एलिजाइक नोट और ह्यूमन मिजरी जो हमें जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने बताया, वही घिसी पिटी कहानी दोबारा जो है लाना? क्या रिवाइवल ये होता है कि जो टेनिसन ने कॉम्प्रोमाइज किया बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, क्या वही रिवाइवल को एक माना जाएगा? या ही डिड समथिंग न्यू दैट इज नोन एज इनोवेशन? क्या उन्होंने कुछ नया किया, या उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसको आप कह सकते हैं कि वो इनोवेटिव पोएट थे? T.S. Eliot, undoubtedly he was an innovative poet. Then what new things he did? उन्होंने नया क्या किया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो थे तो उन्होंने नया क्या किया? What new things he did? या अभी तक के लेक्चर में जो आपने सुना, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या नया किया पोइट्री में? यस, दैट्स अ गुड थिंग. उन्होंने ये दिखाया, और या बिल्कुल, या नहीं दिखाया गया था पोयम के थ्रू, क्या उन्होंने अनडाउटली ह्यूमन मिजरी के बारे में बात किया? उन्होंने अनडाउटली इस पर भी बात किया कि हाउ मच लाइफ इज पेनफुल, लेकिन उनका जो बात करने का अंदाज है वह रोमांटिक नहीं है. अब आपको यहीं पर मैं ये कहता हूँ कि वो इनोवेटिव क्यों है? वो इनोवेटिव इसलिए है कि बिकॉज ही ब्रॉट इम्पर्सनैलिटी हिज इन हिज पोइट्री, बिकॉज ही यूज्ड ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टेक्निक, whatever he wants to say, whatever he wants to present, उन्होंने वहां पर उसको यूज किया है. मैं इंदू मैडम से जानना चाहता हूँ, मैडम आर यू गेटिंग माई वॉइस? इंदू मैडम, मैडम यू कैन अनम्यूट इफ यू आर गेटिंग एंड रिस्पॉन्ड मी. देयर इज सुयोग तिवारी एंड आई डोंट नो अबाउट सुयोग जी. सुयोग जी, you can tell me, are you getting my voice? सुयोग जी, जहाँ पे आपका नाम लिखा है वहां पे आप माइक टच करके मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक माइक का सिंबल. नाउ वी हैव वैभव तो मेरे साथ है ही है, सत्यम भाई भी है, और उसके अलावा गजेंद्र जी भी है, अमित भाई है, शिशिर जी भी है. एंड या यही इन्हीं दो तीन लोगों का रिस्पांस आई एम नॉट गेटिंग. या आई वाज टेलिंग यू, तो जो, या ओके 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 सुयोगी, अच्छा ओके ओके. एंड इंदू मैडम का नहीं.
So I was telling you कि Shishir ji is saying कि undoubtedly we find these things. What do we find? We find कि वहां पर जो है क्या है, उन्होंने लस्ट के बारे में बात किया, उन्होंने पैशन के बारे में बात किया, उन्होंने गैम्बलिंग के बारे में बात किया, और उन्होंने इस पर भी बात किया कि व्हाट इज occurring within the heart, within the mind of a character of a man, not man at outer level बट मैन एन इनर लेवल। यह टीएस एलियट की पोइट्री की एक और खासियत रही है कि ही पिनिट्रेटेड ह्यूमन माइंड एंड हार्ट। दैट वाज डन बाय whom in Victorian era. This art you find in the poetry of whom? This art you find in the poetry of रॉबर्ट ब्राउनिंग। यह जो आर्ट पोइट्री का रहा, यह आप कहाँ पे पाते हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग में। स्पेशली जो रॉबर्ट ब्राउनिंग का पोयम रहा है ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में भी पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड था, लेकिन उस ड्रामेटिक मोनोलॉग में मैन को आउटर लेवल पर भी प्रेजेंट किया जाता था। यू कैन जस्ट टेक माई लास्ट डचेस, वेयर देयर इज अ सिनिस्टर ड्यू, हॉटी ड्यू, ग्रीडी ड्यू, who ultimately commands someone to kill his wife. But when you talk about interior monologue, एक तो आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन जब आप इंटीरियर मोनोलॉग कहते हैं तो आपके माइंड में आता है कि इंटीरियर मोनोलॉग का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल अगर कोई चीज है तो वह क्या है? वह आपका दैट इज लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। So what I want to tell you कि एलियट एज अ पोएट अनडाउटली ही ब्रॉट इनोवेशन, वह एक इनोवेटिव पोएट थे। ही वॉज नॉट अ ट्रेडिशनल पोएट कि what has been said, what has been done by Victorian poet, by romantic poet, he is going to follow the same pattern. No, not at all. And even you will come to know कि in modern era, especially with the coming of G.M. Hopkins, you find what? You find rapid change in the structure of the poem. जब से जीएम हॉपकिंस आए थे, मॉडर्न एज की पोइट्री में एक रैपिड चेंज आपको देखने को मिलेगा। वह कौन सा चेंज देखने को मिलेगा? जहाँ पे कर्टर सानेट की बात होती है तो 10 और हाफ लाइंस की बात होती है, जहाँ पे स्प्रंग रिदम की बात होती है तो टू अनस्ट्रेस्ड स्ट्रांग, टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल या टू स्ट्रांग सिलेबल के बाद आप देखते हैं कि कैसे जो है एक तरह से वीक सिलेबल की उन्होंने बात की है। थियरी ऑफ इंस्केप, इंस्केप की अल्टीमेटली व्हाट द ब्यूटी लाइज इनसाइड द ऑब्जेक्ट नॉट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, इसको लेकर के बात होती है। हॉरिबल सोनेट की बात होती है। तो ये जो शुरुआत था, ये सारा शुरुआत आप जीएम हाफकिन से देख सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक बड़ा परिवर्तन कौन लाते हैं? इसमें एक बड़ा परिवर्तन डब्ल्यू बी येट्स लाते हैं। जब डब्ल्यू बी येट्स किसके बारे में बात करते हैं? आयरिश फॉक के बारे में बात करते हैं, फॉक लॉर के बारे में बात करते हैं, आयरिश कल्चर के बारे में बात करते हैं। स्पेशली जब वो बात करते हैं ईस्टर्न फिलॉसफी को लेकर के, पुरोहित स्वामी से इन्फ्लुएंस होकर के, गीतांजलि का जब उन्होंने प्रीफेस लिखा उसको अगर आप बात करेंगे, या अगर उनका पोयम बाइजेंटियम है, सेलिंग टू बाइजेंटियम है, द सेकेंड कमिंग है, तो आप ये पाएंगे कि वहां पे स्पिरिचुअलिटी भी है, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक वार्निंग भी है। वह वार्निंग क्या है? कि जो मॉडर्न लाइफ है, इन मॉडर्न लाइफ देर इज लस्ट, इन मॉडर्न लाइफ देर इज पैशन, इन मॉडर्न लाइफ इज मटेरियलिस्टिक लाइफ, इन मॉडर्न लाइफ देर इज नो रूम फॉर स्पिरिचुअलिटी, इन मॉडर्न लाइफ देर इज व्हाट डिग्रेडेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज। ये एक तरह का वार्निंग भी है, और वह उस वार्निंग में कहते हैं कि फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? डब्ल्यू बी येट्स के सेकेंड कमिंग की बात कर रहा हूँ कि हाउ द सेकेंड कमिंग विल बी, a rough wild beast that will come, that will not be the Jesus Christ, but that will also come from Bethlehem. But this particular wild beast come to destroy the structure of the civilization, to destroy the structure of the culture. एक तरह से डूम्स डे आएगा, एक तरह से हैवॉक आएगा। इसकी जो कल्पना उन्होंने की होगी वो शायद हमें 1939 में देखने को मिलती है। फ्रॉम 1939 टू 1945 यू विल कम टू नो, या यू विल फाइंड कि वो चीज हमें देखने को मिलती है। व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप ये पूरा सिचुएशन को देखते हैं, पूरी सिचुएशन से वाकिफ होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि मॉडर्न पोइट्री और मॉडर्न लिटरेचर में एक बड़ा तब्दीली आ रही है, एक बड़ा बदलाव आ रहा है। जस्ट आई वांट टू नो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सेटिंग मेरे मोबाइल का सही नहीं है क्या? या ओके ओके। तो you will come to know, I was telling you
how you can get these points, how you can understand these points. When you talk about this era, when you talk about मॉडर्न एज, तो मॉडर्न एज का पोइट्री में यू फाइंड सम चेंजेस. वो चेंजेस केवल अकेले टीएस एलियट ने नहीं किया. बिफोर टीएस एलियट या ड्यूरिंग उस समय जितने लोग थे सब कुछ नया कर रहे थे. क्या ईस्टर्न फिलोसफी आपको विक्टोरियन एज में देखने को मिलेगा? स्पेशली फिलोसफी ऑफ ईस्ट मीन्स इंडिया का. पूरा आपने पोयम अर्नॉल्ड पढ़ डाला, आपने पूरा टेनिसन पढ़ डाला, आपने पूरा जो है रॉबर्ट ब्राउनिंग पढ़ डाला. क्या कहीं पे गंगा का जिक्र था? क्या कहीं पे बुद्धा का जिक्र था? क्या कहीं पे डा डा का जिक्र था? दत्ता दया धाम दमयता. क्या कहीं पे ये कहा गया कि वंश गंगा व श्रंखन? क्या कहीं पे इसका जिक्र था कि रियली में ईस्ट जो है वह क्या था कि एक समय वहां पे भी क्राइसिस था कल्चर को लेकर के, सिविलाइजेशन को लेकर के. बट द पीपल ऑफ द ईस्ट दे वर हाईली कॉन्शियस, दे प्रोटेक्टेड, दे सेव्ड देयर कल्चर, दे have spirituality, they were loving, caring and very close to God. Such a philosophy do you find विक्टोरियन इरा की पोइट्री में, रोमांटिक में? आप कुछ कह सकते हैं कि रोमांटिक में आपको देखने को मिलता है, लेकिन रिफरेंस नहीं मिलेगा. वर्ड्सवर्थ ने कभी नहीं कहा कि वो जो है ये किसी भी जो है जो इंडियन रिलीजियस बुक्स रही है या स्क्रिप्चर्स रहा उससे वो प्रसिद्ध है, उनका कोई हवाला दिए हो. लेकिन टीएस एलियट हवाला देते हैं, गंगा का भी हवाला देते हैं, बुद्धा का भी हवाला देते हैं, दत्ता दयाधाम दमयता का भी हवाला देते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद का भी हवाला देते हैं. क्या ये नया ट्रेंड नहीं रहा है पोइट्री में? क्या सेलिंग टू बाइजेंटियम और बाइजेंटियम जो डब्ल्यू बी ईट्स की रही है वहां पे स्पिरिचुअलिटी जो रही, जो ईस्ट का था वो नजर नहीं आता है? क्या पुरोहित स्वामी का डब्ल्यू बी ईट्स से कोई जो है कॉलिशन या एक तरह सा गेट गेट टुगेदर उनके साथ नहीं था, एक्सचेंज ऑफ व्यूज नहीं था? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब प्रीफेस लिखा गया होगा डब्ल्यू बी ईट्स के द्वारा 1913 में, तो वह गीतांजलि का जो भी प्रेजेंटेशन था वह जो है वह पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस किया होगा व्हेन ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? तो जो मॉडर्न एज का लिटरेचर, स्पेशली जो टी एस एलियट बात करते हैं, जो डब्ल्यू बी येट्स बात करते हैं, इसको आप ट्राई टू अंडरस्टैंड इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव. You find the presence of the East, you find the presence of the East, especially from the perspective of spiritualism, from spiritual perspective in the works of these person. इनके जो वर्क्स हैं उसमें आप इस चीज को पाते हैं. What I want to tell you, what I want to say, it doesn't mean that you are going to study T.S. Eliot. उन्होंने ये लिख लिया, ये उनकी किताब आ गई, ये उनका ड्रामा रहा था, ये उनका चीज रहा था. नो, what new thing was done by this man? Then you will come to know कि undoubtedly modern age जो रहा है वह एज अनरेस्ट और एंजाइटी का रहा है. मॉडर्न एज जो रहा है वह टू वर्ल्ड वार का एज रहा है. मॉडर्न एज जो रहा है वह लस्ट का एज था, पैशन का एज था. मॉडर्न एज जो रहा है वहां पर आप किसका पाते हैं? वहां पर आप पाते हैं कि लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लॉस ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज. और इसके अलावा द पीपल अल्टीमेटली साइंस बिकम प्राइमरी, रिलीजन बिकेम सेकेंडरी. जो जो क्लैश विक्टोरियन एज में था, क्लैश बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, जो कंप्रोमाइज विक्टोरियन एज में था कि कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन बाय हुम, कंप्रोमाइज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन बाय टेनिसन. यहाँ कंप्रोमाइज नहीं है, यहाँ पे पीपल का विश्वास साइंस में ज्यादा है, साइंस बिकेम प्राइमरी और रिलीजन बिकेम सेकेंडरी. जब आप कंप्रोमाइज की बात करते हैं इसका मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट है. यू फाइंड पैरेलल गवर्नमेंट. So when I talk about these things, whenever I talk about these things, especially T.S. Eliot, unrest and anxiety, symbol, image, satire, irony, indirect way of saying, allusion, references, और उनका जो सेटिंग रहा है, जो उसमें आप देखेंगे उन्होंने अपनी सेटिंग में क्या बताया. उन्होंने अपनी सेटिंग में यही दिखाने की कोशिश की है, अर्बन कल्चर, सिटी लाइफ. और जो अर्बन कल्चर है, जो सिटी लाइफ है, वह मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है. अगर उन्होंने टेम्स नदी का जिक्र, लंदन का जिक्र अगर द वेस्टलैंड में किया है, तो द वेस्टलैंड से पहले उन्होंने नैरो स्ट्रीट की बात जो है लव संग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफ्राक में भी की है. लेट अस गो यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज अगेंस्ट व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट द स्काई, सच अ लाइन्स यू फाइंड.
So what I want to tell you कि especially when you go with these persons, when you go with this particular man, what new thing you find in this age? The new thing you find that is what, that is कि पूरा का पूरा कुछ नया हो रहा है। वो नया किसके रूप में देखने को मिलता है? फ्री वर्ड्स के रूप में। तो इसका मतलब आपको ये जानना पड़ेगा फ्री वर्ड्स के ऑलरेडी आप जानते हैं। मैं हल्का से बताया कि उसको वर्ड्स लिब्रा कहा गया, उसको ओपन फार्म कहा गया। वाल्ट व्हिटमैन ने पहली बार अपनी किताब लीव्स ऑफ ग्रास में उसका यूज किया हुआ है। तो ये तो आपका ऑलरेडी रिकॉल हो जा रहा है, ऑलरेडी आपने इतना पढ़ा है कि आप वो सारी चीजें हो जा रही है। जब आप भी कहते हैं कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ अनरेस्ट एंड एंजाइटी, ये बात किसने कही? डब्ल्यू एच ऑर्डन ने कही हुई है। जब आप ये चीज कहते हैं कि जो है पोइट्री इज द एज इज कॉम्प्लेक्स देयरफॉर पोइट्री शुड बी कॉम्प्लेक्स, इनडायरेक्टली, ये कोई एग्जैक्ट स्टेटमेंट नहीं है लेकिन ऐसा सेंस निकलेगा इनडायरेक्टली कि ये चीज कहाँ से नजर आती है? ये चीज आपका टीएस एलियट से नजर आता है। तो टीएस एलियट को ओवरऑल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड टीएस एलियट एज अ क्रिटिक, टीएस एलियट एज अ पोएट, तो उन सब चीजों को हमें देना पड़ेगा। अगर आप किसी आदमी के साथ ये लगाते हैं कि द क्रेडिट गोज टू दिस मैन टू रिवाइव पोइट्री एंड ड्रामा इन मॉडर्न era because it was speculated that with the death of Tennyson poetry will die, so instead of dying poetry was revived। पोइट्री डाइंग की जगह पोइट्री रिवाइव होती है। और अगर पोइट्री रिवाइव होती है और अगर आप क्रेडिट देते हैं कि यह रिवाइव किया गया, तो रिवाइव कैसे किया गया? क्या नया चीज आपको देखने को मिलता है? क्या सेम पैटर्न वही फॉलो किया गया? नो, नॉट एट ऑल। तो जितनी भी चीजें बताई गई हैं, हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, दो लेवल पे डिस्कस किया गया है। एक तो उसका फॉर्मल स्टडी, दैट इज हाउ हैज बीन सेड। दूसरा उसका जो है कंटेंट, व्हाट हैज बीन सेड। जब आप फॉर्मल स्टडी की बात करते हैं, इसका मतलब कि आप यहाँ पर नी क्रिटिसिज्म की बात करें, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करें, वर्ड्स ऑन द पेज। वर्ड्स ऑन द पेज में आप क्या पा रहे हैं? वर्ड्स ऑन द पेज में उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन पा रहे हैं, हाउ ही हैज presented the problem, the chaotic situation, and to present that situation, that whether that was a world war, whether that was a delay in action, whether that was the unrest and anxiety, whether that was lust, whether that was passion, whether that was ki clash between materialism and spiritualism, mass migration of the people, urbanization, mechanization, delay in action, and ultimately man not at outer level, man at inner level, interior monologue। इन सब चीजों को बताने के लिए उन्होंने क्या तरीका एडॉप्ट किया है? उन्होंने तरीका जो एडॉप्ट किया है, ये लिया हुआ है कि तमाम तरह की जो डिवाइसेस होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, उसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। वो तमाम तरह की लिटरेरी डिवाइसेस क्या, उसको उसने सजाया है, खूबसूरत बनाया है, या अपने को अलग दिखाने की कोशिश किए हुए है। वो कौन कौन सी डिवाइसेस की? मिथ, सिंबल, इमेज, आयरनी, सटायर, इंटीरियर मोनोलॉग का जो उनका कॉन्सेप्ट रहा है, फ्री वर्ड्स। स्टैंजा में भी आप देखेंगे कि कुछ छोटा बड़ा कोई ऐसा नहीं, जब फ्री वर्ड्स है तो इरेगुलर स्टैंजा फॉर्म, इरेगुलर मीटर होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब चीजों को लेकर अलावा उन्होंने एल्यूजन का यूज किया है। और एल्यूजन को आप जानते हैं कि एल्यूजन इज व्हाट? एल्यूजन इज पासिंग रेफरेंसेस। some lines of some work have been taken and put here, but when you try to explain you find that कि इसका कहाँ से explanation होगा? कहीं दूसरी जगह से। खास करके पूरा का पूरा द वेस्टलैंड, दातेस का इन्फर्नो का बात, या अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे क्या नाम है इसमें लफ्संग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफाक में। तो एल्यूजन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, जिसका मतलब है पासिंग रेफरेंसेस। एंड एक्सेप्ट इट व्हाट यू फाइंड कि टेक्सुअल क्रिटिसिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, कि so many text you find in a particular text। क्या टेक्सुअल क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट आपको विक्टोरियन एज में मिलेगा? क्या उसका कॉन्सेप्ट रोमांटिक एज में मिलेगा? हो सकता है कि थोड़ा बहुत चीजें आपको जो है किड्स में मिल जाए, बट वी डोंट फाइंड कि जितना ज्यादा टेक्सुअल क्रिटिसिज्म, so many text in a particular text, the particularly what the wasteland। अभी एक जगह पे सेमिनार हो रहा था, और अपने ही जो है यूनिवर्सिटी के एनआईटी सिक्किम में अपने यहाँ के एक लोग हैं, वहां पे हैं, वो करा रहे थे। तो एक स्पीकर थे फॉरेन के, आई एम मिसिंग द नेम ऑफ दैट मैन, वो थे। तो वहां पे उन्होंने यही चीजें दी कि क्या क्या चीजें रही है। तो एक चीज वहां पे एक क्वेश्चन निकल करके आया, जो मैंने एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा
कि डू यू फाइंड एनी ओरिजिनल थिंग इन द लिटरेरी वर्क ऑफ टीएस एलियट। जब प्लाजियरिज्म की बात आज के जमाने में होती है कि प्लाजियरिज्म में इन्होंने इनका ले लिया, इन्होंने उनका ले लिया, उन्होंने उनका ले लिया, तो अगर आप देखेंगे तो क्या टीएस एलियट ने पूरा का पूरा द वेस्टलैंड नहीं ले लिया? तब वहां पे और लोगों ने क्वेश्चन किया कि व्हाट न्यू थिंग यू फाइंड। शेक्सपियर की भी किताब का क्लासिस्ट जो लिटरेरी पीसेस रहे हैं वहां से भी जो है, ईस्ट का भी फिलॉसफी, बृहदारण्यक उपनिषद का, उसके बाद क्या क्या तमाम चीजों को तो लेकर के उन्होंने एक कर दिया। तो क्या वहां प्लाजियरिज्म नहीं रहा है? वहां ओरिजिनलिटी क्या रही है? लेकिन अगेन वो सारी की सारी चीजें कि यू फाइंड दैट कि देयर इज अ थियरी, दैट इज व्हाट, दैट इज द टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म, सो मेनी टेक्स्ट इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, and in the light of that text you are going to interpret another text. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यह भी एक नया चीज रहा जो कि आपको रोमांटिक एरा में नहीं मिलेगा, जो आपको विक्टोरियन एरा में नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा डोवर बीच आप पढ़ेंगे, आप कहेंगे डोवर बीच में सर सोफोक्लिस का जिक्र है। जितनी बड़ी जो भी पोयम 25-30 लाइन का है, आप 25-30 लाइन टीएस एलियट का पढ़ डालिए और आप देखिए कि कितना सारा जिक्र है दूसरी टेक्स्ट का। वहां पे सोफोक्लिस का एक जिक्र किया गया कि जो मैथ्यू अर्नाल्ड नोट ऑफ ह्यूमन मिजरी सुन रहे हैं वही सेम चीज बहुत पहले इट वाज हर्ड बाई हुम, इट वाज हर्ड बाई सोफोक्लिस। लेकिन उन्होंने उसको वहां पे बताने की कोशिश की। यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी चीजें बताई जा रही वो सब लेकर के, या टेम्स नदी भी है तो उसके पैरेलल गंगा चलेगी, उसके पैरेलल। और गंगा रिवर के रूप में नहीं होगा, गंगा इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिचुअलिटी, और वह स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं और उसके पहले का जिक्र होगा, दत्ता दया धाम दमयता। तो यू विल कम टू नो कि द पार्टिकुलर इरा इन विच यू आर लिविंग एंड द प्रीवियस इरा विच पास्ड, और जिसमें कि टीएस एलियट लिव्ड, व्हाट द थिंग यू फाइंड, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी और डू यू फाइंड एनी बिग चेंज? तो आप ये पाएंगे कि अनडाउटली जो है टीएस एलियट वाज एन इनोवेटिव पोएट। वह एक या हाँ इनडायरेक्ट में उनके फिर ही डजंट मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर, ही डजंट मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर। या दैट्स गुड की वो टीएस एलियट जो है ऑथर का नाम नहीं मेंशन करेंगे, उनके टेक्स्ट की कुछ लाइनें रख देंगे वहां पर, या कोई ऐसा इवेंट, कोई कोई ऐसा उसका इवेंट रख देंगे जो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन में हो रहा है उसको दिखाने के लिए कि सच अ थिंग आल्सो हैपेंड, सच अ थिंग आल्सो हैपेंड। अब या इंटरटेक्चुअलिटी, इंटरटेक्चुअल। सो व्हाट यू गो, व्हाट यू फाइंड, तो यही तो नया है, ये चीजें और लोगों ने नहीं किया, टीएस एलियट ने किया, फिर भी वो टीएस एलियट पॉपुलर बन गए। दूसरा सबसे बड़ा चीज ये होता है कि व्हेन यू गो अबाउट दिस मैन स्पेशली टीएस एलियट, यू फाइंड दैट व्हाट, यू फाइंड कि इतना कॉम्पैक्ट है उनका अपना वर्क कि 433 लाइंस को भी मॉडर्न एपिक कहना पड़ा। क्यों? वह केवल 433 लाइंस नहीं है, बल्कि वो 433 लाइंस के साथ साथ जो है क्या है, अपने में पूरा का पूरा, इफ आई यूज द वर्ड की, जो पैराडाइज लास्ट में 12 बुक्स में हुआ, जो वर्जिल का एनीड में हुआ होगा, जो और जगहों पे हुआ होगा, वह आप 433 लाइंस में पाते हैं। व्हाट इज नॉट देयर, the whole world you find, the literature of the whole world you find the philosophy of the whole world, even you find what happened in Greek, even you find what happened in other ages, even you find what happened in Asia या in the East, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या फिलोसफी रही, सब कुछ तो आपको वहां देखने को मिलता है। वर्ल्ड वार भी है, लस्ट भी है, गैम्बलिंग भी है, रेप भी है, किडनैपिंग भी है, मर्डर भी है, दुआ भी है, कल्चर भी है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग यू फाइंड। पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस भी है, श्रीकिंग भी है, क्राइंग भी है, वीपिंग भी है, लेमेंटिंग भी है, टीजिंग भी है, कहीं ना कहीं टीयर्स आर रोलिंग फ्रॉम द आईज ऑफ अ विडो, और उसका जो टैटर्ड सिचुएशन में है उसका भी जिक्र। सो इट शोज व्हाट, इट शोज कि कैसे वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट था। अब अगर आपने टीएस एलियट की इन सारी चीजों को देखा, मैं अभी कोई टेक्स्ट नहीं बता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब भी आप पढ़ेंगे, चाहे आप लव सॉन्ग ऑफ जेल प्रूफ्राग पढ़िए, चाहे आप द वेस्टलैंड पढ़िएगा,
ये सारी चीजें वहां निकल करके आएंगी। अगर अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट whom वी वर टॉकिंग अबाउट इन द वर्क्स ऑफ टी एस एलियट वी फाइंड व्हाट वी फाइंड लस्ट, we find passion, we find gambling, we find ultimately what ki loss of goodness, no faith, no humanity, no generosity. The people are undoubtedly they are busy in doing what they are busy in doing. ऐसी materialistic life they are passing. One thing I want to tell you कि ये जो चीजें आप पा रहे हैं, इन सब चीजों में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई है। वह चीजें क्या है कि जब डिग्रेडेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज है, इसलिए ऐसा है बिकॉज द पीपल डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन चर्च, द पीपल डोंट हैव एनी faith or belief in God. In, they are not ready to spend their time where? To spend their time to go to church, or they don't have any time to go on pilgrimage. This is why April is the cruelest month in the wasteland, and this is why you find what this is why you find कि April is the month of sun and shower in Geoffrey Chaucer's Canterbury Tales, Prologue to Canterbury Tales. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक आदमी तो इनोवेटिव वो क्यों है? इनोवेटिव इसी तो है, इसीलिए तो है कि एक आदमी ट्रेडिशनली डिफाइन करता है, और वह क्या ट्रेडिशनली डिफाइन करता है कि अप्रैल इज द मंथ ऑफ सन एंड स्टार। क्योंकि उनके जमाने में जो अप्रैल था वह रियली में जो है क्या था कि पिलग्रिम्स गो ऑन पिलग्रिमेज, लेकिन इन्होंने अप्रैल को बिल्कुल उसका डिफिनीशन ही बदल दिया। और इंडियन वालों से पूछेंगे तो अप्रैल उनके लिए क्या है? मंथ ऑफ सन एंड स्टार भी नहीं होगा, ना ही जो है इट विल बी व्हाट इट विल बी कि अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। और अगर क्रूएलेस्ट है भी तो क्यों है? टैक्स इस महीने में ज्यादा देना पड़ता है। व्हाट आई वांट टू से, इट्स अ सैटिरिकल स्टेटमेंट कि जहां पे आप ले सकते हैं वी हैव व्हाट वी हैव ऑल द थिंग्स। तो एक पॉइंट जो आपको होगा कि इनोवेशन जो है अनडाउटली रहा है, इमेज रहा है, सिंबल रहा है, फ्री वर्स रहा है, एल्यूजन है, रेफरेंसेस है, पिनिट्रेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड है, इंटीरियर मोनोलॉग है। उन्होंने जो कैरेक्टर क्रिएट किया है वो हमारे और आपके बीच का, वट एवर he says on the ground of reality what the character has been created by that man. That's not a fairy, that's not any supernatural character, but that's the character of what की जो आप कह सकते हैं कि द कैरेक्टर इज लाइक यू एंड आई। वह जो कैरेक्टर है यू एंड आई जैसा है। जब आप यू और आई के कैरेक्टर को आपके जैसा मेरे जैसा, तो ये लगता है कि रियली में हाँ समथिंग देर इज अ गुड थिंग कि वो कैरेक्टर रियली में है, या उसको हम इस तरह से पाते हैं। So what I want to say कि when you go especially with this man, especially T.S. Eliot, and when you take all these poems जो हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इस तो पोयम है ये उनकी पोइट्री की खासियत रही, लेकिन ये सारी चीजें कब तक चलती हैं? 1927 तक। 1927 के बाद उनकी पोइट्री में ज्यादातर जो बातें होती है वह क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी होती है, मटेरियलिज्म नहीं होता। एक बड़ा चेंज आप यहां पर भी देख लीजिए कि before 1927 you only find what you find the clash, yeah, you find both element, and what was that was the clash between materialism and spiritualism। materialism हावी है और spiritualism अंतिम सांसें ले रहा है, सिस्कियां एक तरह से वी फाइंड। लेकिन जब आप इस पार्ट इस पार्टिकुलर चीज को देखते हैं, कहां पे देखते हैं? व्हेन यू गो कि 1927 के बाद जहाँ पे जर्नी टू मेजाई जैसी पोयम आती है, बर्ट नाटन आता है, ड्राई साल्वेजेस वगैरह आता है, तो यू फाइंड केवल क्या? यू फाइंड आप स्पिरिचुअल जो एलिमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है, और वहां पे पॉजिटिव थॉट है, वहां पे एक्सपेक्टेशन है कि अनडाउटली व्हेन यू आर ऑन द वे एंड फॉलोइंग सम गुड थिंग्स, प्रॉब्लम विल कम, hindrance will be produced, difficulties will come in your way, but if you conquer that difficulty, if you defeat, if you overcome with that problem, it means that undoubtedly you are very loyal to God, you are very close to God, you are devoted to God, and to defeat these things you need what? You need ultimately that you have firm determination, you have firm belief in God. So you find what? You find the crops of
spirituality. You find the garden the land, undoubtedly the land was cultivated, but that was what land? That was the land of spirituality. तो एक बहुत बड़ा चेंज 1927 से पहले और 1927 के बाद ये पोयम में देखने को मिलता है। 1927 से पहले वर्ल्ड वार का एक्सपीरियंस, तमाम चीजें रहेगी, वर्ल्ड वार खत्म नहीं हो जाता, वो सब चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ा चीज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट व्हेन यू गो, या व्हाट आई वांट टू से, कि पोइट्री में उन्होंने एक और चीज किया था, वह कौन सी चीज रही है कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ की है, और एलिजाबेथन पोइट्री या एलिजाबेथन पोएट्स को बहुत ज्यादा एडमायर या इंटरटेन नहीं किया है। मेटाफिजिकल पोएट्स की तारीफ क्यों की है? इसलिए तारीफ किया हुआ है कि एक तो वहां पर मेटाफिजिकल कंसीट है, और उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है मेटाफिजिकल पोएट्स का, उसमें आप क्या चीज पाते हैं? उसमें आप पाते हैं एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। अब यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ उनकी थियरी को भी, जो मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से 1921 में आई हुई है, जस्ट आई वांट टू नो, वैभव जी कैन यू टेल मी कि उन्होंने एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को लेके क्या बात किया है? व्हाट डू यू फाइंड, वैभव जी? व्हाट डिड ही से? आवाज जा रही है मेरी? सुयोग जी, इंदु मैडम, गजेंद्र जी, अमित भाई। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिशिर जी या अमित भाई, कैन यू एक्सप्लेन इट? और चीजें क्या रही है? शिशिर, या कैन यू एक्सप्लेन इट? व्हाई डिड ही? हाँ, हाँ, ठीक है, डिसोसिएशन की बात की गई है। अच्छा, ठीक है, आप म्यूट करिए। इंदु, हाँ, इंदु मिश्रा मैडम ने अपने आप को अनम्यूट किया, ये वांट टू नो, या इंदु मिश्रा मैडम। आ, नहीं, क्या, देखिए, जो बातें आप लोगों ने कही है उसमें मैं एक, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, या इंदु मैडम, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, या वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन यू टॉक अबाउट की डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, देन रिमेम्बर दैट कि ये पार्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट रहा है, ये उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री में दिया, लेकिन मेटाफिजिकल पोएट्स को लेकर के, लेकिन उसमें उनका एक ही चीज कहना था कि जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस गुड पोइट्री, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और जो डिसोसिएशन ऑफ पोइट्री है, इट प्रोड्यूसेस बैड पोइट्री। उन्होंने जो एग्जांपल दिया, दो चीजों का लेकर के दिया, मेटाफिजिकल पोएट्स और एलिजाबेथन पोएट्स। तो जो गजेंद्र जी ने कहा, या उनकी मतलब फैमिली इज अटेंडिंग क्लास, अनडाउटली दैट्स अ ब्यूटीफुल आंसर।
और कि वहां पे क्या था कि फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। जब थॉट और इमोशन जो रहा है उसको जब आप देखते हैं कि थॉट एंड इमोशन दैट वाज फ्यूज्ड, थॉट और इमोशन को फ्यूज किया जाता है, तो यह चीज क्या होता है, यह एसोसिएशन है। और इस पार्टिकुलर चीज को कौन किन्होंने किया था, मेटाफिजिकल पोएट्स ने। यह उन्होंने बहुत, इसकी कमी थी। यस, एलिजाबेथन पोएट्स में इसकी कमी थी। क्यों? चूंकि उनका जो थॉट है वह इमोशन के साथ जुड़ करके नहीं चलता। पहली बात तो उनके यहाँ इमोशन ही है, थॉट उतना ज्यादा हाई ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि टीएस एलियट की जो पोइट्री है, उनकी पोइट्री में व्हाट वी फाइंड थॉट एंड इमोशन, कहीं ना कहीं उसमें आप देखेंगे थॉट और इमोशन का कॉम्बिनेशन है, थॉट और इमोशन कंबाइंड होकर के चलता है, फ्यूजन उसका देखने को मिलता है। तो एक नया चीज जो उनके द्वारा किया गया, यह चीज वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और यही सेम खासियत क्या है, दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट हिज critical essay metaphysical poets. Second important point which I want to share with you is that when you talk about Elizabethan poets, when you talk about metaphysical poets, then remember that undoubtedly Elizabethan poets भी great रहे, मेटाफिजिकल पोएट्स भी अपने में ठीक रहे, लेकिन उन्होंने उनको लिया, उन्होंने जब उनको लिया तो वो कुछ ही वांट्स टू डू सम न्यू थिंग। और उस न्यू थिंग्स में उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन मींस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। व्हाट इज दैट? यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब होता है यूनाइट करना, जोड़ना। कोई भी ऐसा पोएट या कोई भी ऐसी पोयम जिसमें थॉट और इमोशन जुड़ करके चलता है, उसको हम यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज जहां पे थॉट अलग और इमोशन अलग दिशा में चलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी कहते हैं। then it means that you find dissociation of sensibility, you find where? Dissociation of sensibility you find in the poetry of Elizabethan poets, or association of sensibility or unification of sensibility you find in the poems of John Donne and his followers। अब उसको ये होता है कि इसको जो है ये एक नया चीज उनके द्वारा किया गया था, इसलिए टीएस इलियट ने इसको एडमायर किया एंड ही हिमसेल्फ फॉलोड दिस पार्टिकुलर पॉइंट, ही हिमसेल्फ फॉलोड। अब जो है, जो शिशिर ने बात कही थी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, यह चीज उन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है, यह चीज उन्होंने अपने क्रिटिकल एज से हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में दिया हुआ है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव विच केम इन 1919, जो 1919 ईस्वी में आता है। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, यह भी एक तरह से मॉडर्न पोइट्री में एक नया काम करता है। हैमलेट को लेके जो इतना पॉपुलर प्ले था, शेक्सपियर हु वाज अ पॉपुलर ड्रामेटिस्ट, ही क्रिटिसाइज्ड एंड ही सेड दैट कि देयर इज व्हाट नॉट प्रॉपर ऑब्जेक्ट टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ हैमलेट। हैमलेट का इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा नहीं लिया। यह एक बहुत बड़ा चार्ज था जो लगाया गया शेक्सपियर पर, चाहे उनको डिफेम करना हो, चाहे ये चीज रहा हो। बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया कि टोटल ऑब्जेक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल। तो ये चीज आप देखते हैं, ये चीज आप पाते हैं। तो ये चीज आप देखिए कि नया क्या हो रहा है। नया एक तो आया यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, या जिसको आप कह सकते हैं एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। उसी के अगेंस्ट में एक और बात आती है डिसोसिएशन ऑफ, जो ये बताया गया कि एलिजाबेथन पोएट्स वर नॉट गुड पोएट्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और मेटाफिजिकल पोएट्स वर गुड पोएट्स बिकॉज दे बिलीव्ड इन एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, देयर इज द फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। उसके बाद हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में ये कहा गया कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यू विल कम टू नो कि जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, इट्स व्हाट, इट्स अ फ्रेज विच अल्टीमेटली रिफर्स टू व्हाट, कि वट एवर यू वांट टू प्रेजेंट, whatever emotion you have, whatever feelings you have, whatever you want to present, you have to present it taking proper object। प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के आप इसको प्रेजेंट करिए। जब प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेकर के उसको आप प्रेजेंट करेंगे, तब उन्होंने ये बात कही है कि वहां पर आप क्या पाएंगे, प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेने पर का मतलब ये हो गया कि अगर अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल दें कि अगर डिले इन एक्शन दिखाया गया, किसका डिले इन एक्शन दिखाया गया, प्रूफराक का।
तो प्रूफरा का डिले इन एक्शन दिखाने के लिए यू विल फाइंड दैट देयर इज द इमेज ऑफ फॉग, there is the image of a cat who is rubbing its back, there is a dog who is licking the water, कहीं एक गंदी नाली का पानी को लीक कर रहा है। ये सब जितना भी है, इंस्टेड ऑफ प्रोपोजिंग गर्ल यू विल कम टू नो कि he has delay in action and this delay in action has been presented taking these images, इन सारी इमेजेस को लेकर के प्रेजेंट किया गया है। सो ये एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट है जो उसकी मेंटेलिटी को, जो उसके दिमाग में चल रहा है, डायरेक्ट उसको एक्सप्रेस नहीं किया गया बल्कि किसके थ्रू प्रेजेंट किया गया, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यह एक नई चीज हमें देखने को मिलती है कहाँ पर, पोयम में। और उन्होंने कहा कि जो जो ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव है यह क्या होगा, इट्स अ चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चेन ऑफ सिचुएशन या कैरेक्टर, तीन चीजें। वह जो है क्या हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, वह सिचुएशन भी हो सकती है, वह कैरेक्टर भी हो सकता है, जिसके माध्यम से वी कैन क्रिएट दिस पार्टिकुलर थिंग, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी फाइंड, या दिस इज अनदर पॉइंट विच वी सी, जो हमें देखने को मिलता है। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट इज आल्सो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, अगेंस्ट इट वी फाइंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एलिजाबेथन पोएट्स पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्या चीज आता है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जो हैमलेट प्ले शेक्सपियर को लेके बात किया गया, वहां पे ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव टेक्निक की बात की गई है, उसको लेकर के किया जाता है। फिर जो तीसरा अटैक है जो पोइट्री में नया उन्होंने किया और अपनी थियरी में भी, इसीलिए मैंने कहा था कि इनको स्टडी करने से पहले, बिफोर स्टडी हिम एज अ पोएट, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी हैव टू गो विद दीज थ्री क्रिटिकल एसेज। उन्होंने जब इस पर बात किया तो एक तीसरा अटैक वो वर्ड्सवर्थ पर करते हैं, रोमांटिक पोएट्स पर। वह क्या था, वह सब्जेक्टिविटी को लेकर के था और पर्सनालिटी को लेकर के था। तभी उन्होंने कहा था कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, इट्स एन escape फ्रॉम इमोशन, इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, इट्स एन escape फ्रॉम पर्सनालिटी। इसका मतलब कि यहाँ पर उन्होंने किसको लेकर के बात की, यहाँ पर उन्होंने जो बात की है इम्पर्सनल थियरी को लेकर के, विच यू फाइंड इन हिज क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में। ये जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट रहा, इट केम इन 1917, और उसमें ही उन्होंने बताया कि दो चीजें बताई है कि एक इंडिविजुअल टैलेंट को डेवलप करने के लिए आपको ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब पास्टनेस ऑफ द पास्ट, एक चीज ध्यान में रखिए, ट्रेडिशन मतलब पास्टनेस ऑफ द पास्ट। ट्रेडिशन मतलब पास्ट नहीं कि अगर आप मॉडर्न एज में है तो जो विक्टोरियन एज का तरीका है, वो क्लासिक पोएट्स में, क्लासिक लिटरेरी थियरीज में विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा कि पास्टनेस ऑफ द पास्ट को अगर आप जाएंगे, जो आपका पास्टनेस ऑफ द पास्ट है, जहां से रूट हर चीज का, लिटरेचर का या लिटरेचर के किसी जानरा का रूट है, वो सब ग्रीक और रोमन लिटरेचर से आया है। तो इंडिविजुअल टैलेंट का मतलब कि उसको समझ करके, उसको पढ़ करके आपको अपने अंदर इंडिविजुअल टैलेंट डेवलप करना, अपने सिचुएशन के अनुसार उसको क्रिएट करना, एडेप्ट करना, ढालना है, ये चीजें। उसी में उन्होंने कहा था कि जो पोयट्स हैं उनको जो है अपनी पर्सनालिटी नहीं शो करना चाहिए, दे शुड नॉट शो देयर प्रेजेंस इन पोयम, उनको पोयम में अपनी प्रेजेंस नहीं शो करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ शोइंग देयर ओन प्रेजेंस या शेयरिंग देयर ओन इमोशन एंड फीलिंग, दे हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन, दे शुड टेक द हेल्प ऑफ एनी कैरेक्टर, उनको कोई कैरेक्टर क्रिएट करना चाहिए, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट कैरेक्टर दे हैव टू प्रेजेंट देयर इमोशन, दे हैव टू प्रेजेंट देयर फीलिंग, या उन्होंने कहा कि दे शुड हाइड देयर पर्सनालिटी। अब जब उन्होंने इतनी बात कह दी तो सबसे बड़ा अटैक किस पर हो गया, सबसे बड़ा अटैक तो वर्ड्सवर्थ पर हो गया। और उनके समय में वर्ड्सवर्थ सबसे लीडिंग पोएट 20th सेंचुरी के अर्ली टाइम्स में वो रहे हैं, जिसमें लोग ये कहते हैं कि इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी है, कॉमन पीपल के बारे में बात करते हैं, और नेचर को या मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर एक मॉडर्न सेन जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसे आदमी पे अटैक करना एक बहुत बड़ा चीज था, और उनको पॉइंट भी मिला। उन्होंने कहा कि मैं नया किया पोइट्री में, वो उन्होंने क्या किया, इम्पर्सनल थियरी उन्होंने ला दिया, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव ला दिए, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को ला दिए, और इनको लेकर के उन्होंने और जगहों पे अटैक भी किया। तो ये सब चीजें रही हैं जो उनकी एज अ थियरिस्ट भी बात करती है, और एज अ थियरिस्ट को उनको समझने के लिए आपको उनका एक वर्क है सैक्रेड वुड, उस पर भी बात करना पड़ेगा। उनका कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसे रहा है, उनका एक और क्रिटिकल एसे रहा, यू नॉट क्रिटिकल एसे, क्रिटिकल बुक, यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, उस पर भी बात करना पड़ेगा। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कब आया है, क्या चीजें उसमें रहा है। एक और चीज आपको बात करनी पड़ेगी कि इन सब चीजों के अलावा उनका एक क्रिटिकल एसे है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म करके, वो भी चीजें
इम्पोर्टेंट रहा है। So, as a poet, you have taken, as a critic, you have taken this man. He was born in 1888 and he was a born American poet, born American critic, but settled down in London. लंदन में उनको सिटीजनशिप मिल जाती है एंड ही डाइड इन 1965। ये सब चीजें होती, दीज आर द कॉमन पॉइंट्स की अपना करियर कैसे शुरू किया, किस जर्नल से जुड़े थे। उनकी कुछ पोएम्स का नाम हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें जो है लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्री प्रूफ्रॉक है, द वेस्टलैंड है, जीरॉन्शन है, पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, जर्नी टू मेजाई है, बर्ट नॉर्टन, ड्राई साल्वेजेस, दीज थिंग्स यू फाइंड। लेकिन उनका एक कंट्रीब्यूशन एज अ पोएट, एज अ क्रिटिक के अलावा एज अ ड्रामेटिस्ट भी रहा है। एज अ ड्रामेटिस्ट जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो क्या था कि ही रिवाइव्ड मॉडर्न प्ले, स्पेशली पोएटिक प्ले। और पोएटिक प्ले को रिवाइव करने के लिए उन्होंने क्लासिक थियरी को फॉलो किया। जो क्लासिक ड्रामेटिस्ट थे उसको उन्होंने, इन्होंने कोरस का यूज किया, थ्री यूनिटीज का यूज किया, पोइटिक लैंग्वेज में लिखा। उनके प्ले में सीन और एक्सपिएशन रहा है, क्लैश बिटवीन मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म रहा है, और तमाम चीजें, ग्रीक मिथ का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसका नाम है दैट इज मिसिंग दैट नेम परहैप्स, ग्रीक मिथ का। कैन एनीवन टेल मी जो ग्रीक मिथ का उन्होंने जिक्र जिक्र किया है? ऑरेस्टिसिया, yeah, something like this, something like this, you will come to know, उसका उन्होंने जिक्र किया है, स्पेशली when you go with the family reunion, the family reunion, and except it you find madam the cathedral, you find the rock, you find confidential clerk, you find so many places you find जहाँ पे ये सब चीजें रही है। तो इन टूडेज क्लास आई हैव डन ओनली वन थिंग कि मॉडर्न एज क्या रहा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रही है, क्या नया पोइट्री में हुआ, टीएस एलियट ने क्या किया इन द लाइट ऑफ टेकिंग डब्ल्यू बी यीट्स एंड जीएम हॉपकिंस को लेकर के, उनका क्रिटिकल एसेज वगैरह को थोड़ा बहुत एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको इस चीज के बारे में दिया। नाउ यू कैन से, या इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क, कि अगर आपको कुछ कहना, उनके किसी टेक्स्ट को मैंने नहीं लिया, टेक्स्ट को आपको खुद ब खुद स्टडी भी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत उससे बात करना पड़ेगा अपने आप से भी। लेकिन इफ यू हैव एनीथिंग, या इफ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन टेल मी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, या अगर आर एनी अदर थिंग, आर एनी सजेशन। एंड रिमेंबर दैट, यहीं पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि व्हेन यू गो विद दिस मैन, especially this particular person, then remember that you have to go with Hopkins और जीएम हॉपकिंस। जीएम हॉपकिंस की दो चीजें, कौन कौन सी दो चीजें हैं? एक तो कार्टर सानेट, स्प्रंग रिदम, और उनका कौन सा पोयम, फाइट ब्यूटी, thou art indeed just lord, thou art indeed just wind hour, if you can take एक दो। यू हैव आल्सो टू गो विद डब्ल्यू बी एट्स, डब्ल्यू बी एट्स का सेकेंड कमिंग जो आपके यहाँ है उसको आप देख सकते हैं, डब्ल्यू एट्स का सेकेंड कमिंग है, प्रे फॉर माई डाटर है, लीडा एंड स्वान है, एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम है, बाइजेंटियम है, लेक आइला फिनिस्प्री है, स्पेशली बाइजेंटियम, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड द सेकेंड कमिंग। आगे आप चलते हैं तो यू फाइंड हुम, यू फाइंड डब्ल्यू एच ऑर्डन, उनका अननोन सिटीजन है, शील्ड ऑफ एक्िलेस है, और भी पोयम्स होगा जो प्रिस्क्राइब्ड आप देख सकते हैं। फिलिप लार्किन का चर्च गोइंग है। इसके अलावा जो है जॉर्जियन पोइट्री और एडवर्डियन पोइट्री, लेफ्ट विंग पोएट और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, एपोकैलिप्टिक पोइट्री, ये कुछ वर्ड है जो आपको वहां से मॉडर्न एज की पोइट्री में कवर करना होगा, तो मॉडर्न एज का पोइट्री आपका काफी हद तक कवर हो जाएगा। ऐसे ही ड्रामा में कल बात हुई थी कि प्रॉब्लम प्ले, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, डिस्कशन प्ले, ड्रामा ऑफ आइडिया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड, किचन सिंग ड्रामा, एंग्री यंग मैन, ब्लैक कॉमेडी, ब्लैक ह्यूमर, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू गो। और नावल में साइकोलॉजिकल नावल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, और डिटेक्टिव फिक्शन, साइबर पंक, साइबोज, मैजिक रियलिज्म, इन सब चीजों को लेकर के व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडर्न एज, एक्सेप्ट इट यू फाइंड व्हाट अदर थिंग्स, आपको जो बात करना है क्रिटिसिज्म में खास करके, यू फाइंड व्हाट आई ए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उनका दो किताब, एक तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म खुद है, दूसरा चीज जो है क्या है कि साइंस एंड पोइट्री करके, और प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तीन किताबें।
लैंग्वेज को लेकर के उन्होंने बात किया कि लैंग्वेज डिनोटेटिव, कनोटेटिव, वही आपका रिफरेंशियल लैंग्वेज, ऑल दिस थिंग। तो लैंग्वेज को लेकर के उनका बात ज्यादा रही है, लैंग्वेज और मेटाफर को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। टीएस एलियट का तीनों पॉइंट हम लोगों ने बात कर लिया। और जो एफ आर लिविस रहे, उनका एक ग्रेट वर्क है ग्रेट ट्रेडिशन, द ग्रेट ट्रेडिशन करके, जो फिक्शनल थियरी पर है। वो किताब ध्यान में रखना चाहिए, जिसमें उन्होंने हेनरी जेम्स को एडमायर किया है। और इसके अलावा उनका न्यू बियरिंग्स इन इंग्लिश पोइट्री रहा है। तो ये जो टेक्स्ट है, ये जो क्रिटिक है, दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर। तो कुल मिला के मॉडर्न एज काफी हद तक कवर हो जाएगा, अगर हम लोग इस पर बात कर लेंगे ऐसे इस तरह की चीजें। बाकी जो आपको फैक्ट है, वो फैक्ट यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस क्लास। आई कांट टेल यू कि ही वाज born इन दिस एज, डाइड दिस एज, उनके अम्मा का ये नाम, अब्बा का ये नाम, तो फिर यही होता रह जाए। एनी अदर थिंग डू यू वांट टू से? हम लोग अब इसके बाद क्या है, इसके बाद एक चीज है कि टीएस एलियट से जब आपने इतना किया, तो टीएस एलियट की दो चीजें, एक तो बर्ट नार्टन को लेकर के बात करना है, और एक आपका द वेस्टलैंड। तो उससे जो क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं, क्या उसमें बताया गया है, उसको चीजें उसके सेक्शंस को लेकर के बात करेंगे, तो चीजें टीएस एलियट एज अ पोएट कवर हो जाएगा। कुछ चीजें आप अपनी तरफ से भी पढ़ लीजिएगा, लव सॉन्ग ऑफ जी अल्फ्रेड प्रूक्राक पर भी आई विल टॉक। तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी और उनके क्रिटिकल हिस्से में आपको और जाने की कोई जरूरत नहीं है, कि ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1917 में आया। उसमें इन पर्सनल थियरी है, वर्ड्सवर्थ को लेकर अटैक किया गया है, फास्टनेस ऑफ द पास्ट की बात की गई है, और उन्होंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बिटवीन टू पोएट्स, और उसको, और हैमलेट एंड इस प्रॉब्लम में उन्होंने ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की बात की, जो 1919 में आया हुआ है। मेटाफिजिकल पोएट जो 1921 में आया हुआ, उन्होंने कुछ और बात की है उसमें, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स। बाकी कुछ अगर आपको और समय मिलता है, तो यू कैन जस्ट गो विद व्हाट यू कैन जस्ट गो विद द sacred wood, use of poetry and use of criticism. Now, Shishir ji, do you want to say anything? Shishir ji, Amit ji, Amit ji, Amit ji, are you getting my voice? Yeah, yeah. Do you want to say anything? हाँ, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, उस पे भी बात करें। ये तो एक तो आज तो क्लास जो भी था, इतना फास्ट था कि उसमें मॉडर्न एज पर भी बात करना था, सारे प्लेस को, खासकर टीएस एलियट। अब आपकी ये ड्यूटी है कि टीएस एलियट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो, जितनी भी तरह की बातें हो, वो आप एक जगह सब कंपाइल कर लीजिए, बना डालिए उसको। हाँ, जितना भी आप उस पर पढ़ सकिए। बाकी रसन फॉर्मेलिज्म और वो तो हमें याद है, न्यू क्रिटिसिज्म, हम कल उस पर भी बात करेंगे। जी गजेंद्र जी, आप? हाँ, अब ये तो आज से शुरू हुआ ना, अगर सीधे उस पर आ जाते तो ठीक नहीं रहता कि ये। जरूर जरूर। कल, हाँ, ठीक है, ठीक ठीक, कल। ठीक है, तो वी विल मीट टुमारो। अगर किसी को कुछ कहना होगा ग्रुप में भेज दीजिएगा, इफ एनी सजेशन, इफ एनी।